Right, so today is the first lecture on human resource management. So see, a lot what you have studied on OB will be a reflection at in HRM, because in OB you discussed, you studied that why human resource is so important, and in OB we discussed how to actually make the best utilization of human resource, how you can control their stress, their personality, change their perception. And in human resource management, we will be studying a different perspective, but the same idea is there, that we here also try to make the best utilization of human resource, and here we try to do it by designing the best possible policies. Now, all the policies that we will design for our human resource definitely will be dependent on what we have studied in OB. Like in OB, we studied the psyche, the human psyche. Now we'll see what suits the human psyche. That's what we'll be studying in the human resource management. Now, just about every organization claims today that their human resources are their most important and valuable assets. So what is about staff, employee, worker, and operatives that make them so important to the management of any organization? Now, this is very true. If you listen to the speeches of any chief executive of any organization, they always say that it is our human resource that is our most important asset. Our success is all dependent on our human resource. So it is true that human resource is the most important resource. And if you remember the case study that we discussed about Southwest Airlines, there we saw that the success at the time of peak crisis, when after 9/11, so the success of Southwest Airlines was not dependent on their good aircraft or their equipments or anything. It was all how well they utilized the human resource, how well Herb Keller utilized the human resource by making policies that best suited the psyche of the human. And through that, they managed to do well. So we understand that how well you design your structure, how good equipment you have, they do matter, of course, but they do not work unless and until you have the right type of people behind them. So you have to have the right people behind your equipment, behind your structure, behind everything, every thing that you have, every resource that you have in the organization. So this is very important. Now, of course, as we discussed in OB, that different culture, different societies, they have different perspective about human, and they design things in accordance to those perspectives. Now, if we see at the ideology of Japan, in Japan, they believe that you should hire anyone who has got good attitude. So they do not want to hire people who are good in work. They don't want to hire experts. They want to hire people who have got attitude that they will stick to the organization. They know that once we hire the people with the right attitude, we'll be able to train them. They'll learn how to work and we'll get the work out of them. But these people should be loyal to the organization. So we should hire people who really can be loyal, who really will be working for a long time in the organization. So the human resource planning and human resource ideas, human resource policies in Japan will be very different to what we will be seeing in European side. Like in European side, they do not believe in having loyalty. In fact, they do not like people who are sticking to one organization for a very long time. It gives a reflection that if you are working in one place for a very long time, that means you do not have desires. And when you don't have desire for your own life, how will you have desire for the prosperity of the organization? Because if you're not switching, that means you do not want new achievement. So they see things in a different way. The policies at the European side will be different. In our case, if we look at the Pakistan case here, where there is frustration in the mind of every person, no matter how rich or poor you are, frustration is at height. So people who are frustrated, they might have a very different mindset.
For them, the HR policy has to be designed differently. In many organizations, I see that they have policies like after 3 lates, your one salary will be deducted. I don't see it working very well. Because what happened? We being in frustration, we are rebellious. So we say, okay, salary kato, main to late aunga. Many people take it that way. And many of the youngsters, they do not have much responsibility on them. Especially many of the young, unmarried female, they don't have much responsibility, so they are working only for their pocket money. So they also feel that salary काटते हैं तो काट लें क्या फर्क पड़ता है कपड़े में एक छोटा सा लेस कम लगा लेंगे बस कोई खास फर्क नहीं पड़ना so अब जब your people are not following your policy so strictly the management becomes a joke people do not take you seriously anymore because they say ठीक है यार सभी रोल इनके policies तोड़ रहे होते हैं क्या फर्क पड़ जाता है So we have to understand that the psyche of our people are very different. So here the policies should be not like the policies of the European or the Japanese side. We have to design a very different style of policies for Pakistani human resource. Here we work in a very different manner. We work for different purpose. Of course, money is one factor. But you will find that we in Pakistan will be more hardworking if we are being respected. If your boss respects you, if your boss is polite to you, you feel comfortable. But if your boss is over polite to you, then you start taking advantage of it. So you have to be polite, but you have to be very rightly polite. Okay. So you have to understand the psyche, and accordingly you design the policies. So what we study in OB is understanding the psyche of the people. That will definitely help us a lot. Now, human resource management involves the process of managing people to perform various tasks within the organization so as to achieve organization goals. What is human resource management? Human resource management is what we are studying in this slide. This is the definition. That was not the definition. That was only a background that human resource is important. The definition here, human resource management involves the process of managing people to perform various tasks within the organization so as to achieve organization goal. So you have various resources in the organization. What is the finance manager doing? He is trying to use the finance in the best possible manner so that organizational goals can be achieved. The production manager is trying to make the best utilization of the production unit so that the organizational goal can be achieved. So is the human resource management. The human resource manager is also trying to make the best utilization of its human resource so that the goals of the organization can be achieved. Now here is the difference. You see, the finance manager is only thinking about the finance. The people, the human resource in the finance department. The marketing manager is only thinking about the human resource in the marketing department. The procurement department manager is only thinking about the people in the procurement department. But the human resource department is not thinking about the people in the human resource department only. We have to design the policy for the whole organization. Be it marketing department, be it sales, be it production, be it procurement, be it R&D. For every department, we have to design policies. So we have to design policy for the people of the whole organization. So we have to ensure that every individual in the organization is performing to their maximum capacity to ensure that the goal of the organization is achieved. Now, if you remember in the very initial lecture of OB, we discussed about what is mission. You remember what is mission? Goal, objective. What is mission itself? Mission, we discussed in the OB class, it is the purpose of existence.
Mission is actually the purpose, reason. Why is an organization existing? Why it has come into being? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों है? उसका पर्पस क्या था? वो पर्पस इज द मिशन. So existence, reason of existence of any organization is its mission. Like I even remember I gave you an example that I said that suppose we have three organizations like Nike, Adidas, Reebok. All these three organizations are involved in producing sports goods. All three are producing sports goods. But if you go into website and find out their mission statement, you'll find they have different mission statements. For example, it's not like this, but I'm just giving you an example. For example, Nike might be saying that our mission is to give a style to sports. So Nike is working with a focus that okay, we have to ensure that there is style in sports goods. Adidas might be saying that we want to bring performance in sports goods. So Adidas is going with a mission that we will ensure that our sports goods is helping you to perform better. Reebok might be saying that we will come up with comfort in sports goods. So they might be designing a sports good which is very comfortable. So they all have got same product but three different missions. So now every unit, every individual in that organization will have to work with the same mission. For example, if the production department is producing sports goods with style and the marketing department is trying to market it with performance, it is not going to work. So they also have to ensure that we are marketing with the same mission. So the whole organization has to have one mission. That means every individual in the organization must have one direction. That is the mission. Now what happened? This organization that we have is divided into departments. We'll have human resource department, procurement department, finance department, sales department, marketing department, and so on. Now every department will have their own objectives. Each department will have their own objective. HR department's objective might be to ensure that they are hiring the most creative people who can bring style in sports goods, and they will keep training them so that these people are more and more creative with the passage of time, so that they can come up with ideas, innovation to bring new style into sports goods. So their objective is different, but is to achieve the mission of the organization. So objective, naturally the finance department cannot have the same objective. So the objective of the finance department will be different. They will try to maintain the finance in such a way that the people are getting help to bring style. So their objective is different, but mission is same. Now these departments might be further divided into divisions. So every division will have their own goal to ensure that the mission is achieved. So they will have their own goal. Every division will have their own goals. For example, in the HR department, we have the human resource department. Objective is to have creative set of people. Now, there is a division which is procurement division for hiring and firing people. There is a division which is TNA, training need analysis. They are analyzing whether training is required. There is a division which is designing compensation. There is a division which is giving training. There is a division which is checking, evaluating whether training has worked or not. What was the impact of the training? So there are different divisions. Now every division is doing their own task, but with one. So every division, they have their own goals, but the ultimate direction is towards the mission. So they are having their own goals. They are trying to find out what are the areas where we are weak. Why? So that the mission can be helped.
Then they're designing training where the weaknesses can be rectified so that the mission can be achieved. Yes, you are. Sir, my question is regarding division. There are many federal departments working for money. If any individual should have a clear vision about the mission or something. Yes, everyone must have. We are coming down to that. Every individual has to have the mission. He must know what the mission is. So, And HR should ensure that every individual is working on this division. yes, definitely. That is not the task of the HR alone. It is the task of every manager that people under him should know what is the mission statement of the organization. That should be made clear, especially when the orientation is there. At the orientation program, the individual who has come new, we should ensure that he understands our mission statement very well. So the divisions are further divided into groups. There will be small groups in divisions. So, for example, the training division, training and development division, they will have a group which is only analyzing the training need. There is a group which is only designing the training. There will be a group which is giving the training. There will be a group which is evaluating the impact of training. So there will be different groups. Now every group is having a different target to ensure that the mission is achieved. So they all are achieving their own targets to ensure that the mission is achieved. And in these groups, there will be individuals. Now every individual will have their own action plan. To ensure that the mission is achieved. So what happens? Like a person who is in this group which is analyzing the training need. So one individual might go and take interview of the people to see where they are weak. So, yes. Excuse me. So let's stop for a second. So what happened? Each individual is working with their own action plan. A person who is trying to analyze whether training need is there or not might create a form and have this form filled so that he can understand the weaknesses of his people and accordingly see where training is required. Another person might take interview of the people, the human resource, and after taking interview might find out where they are weak and where the training is required. The third might go and check their performance evaluation, and according to the performance evaluation, he might find out where training is required. So each individual is working separately with a different action plan, but ultimately they want to achieve the mission. So every individual in the organization is actually there performing their own tasks, they're doing own things. But the ultimate objective, ultimate goal is to actually achieve the mission of the organization. So here that's what we are saying, that what HR is doing, HR is ensuring that people are performing their tasks, they are doing what they have to do. So HR is performing that every individual in the organization is playing their part in the achievement of the mission. Just like a jigsaw puzzle. In the jigsaw puzzle, what happened? There is a picture, and that picture is cut into small pieces. Now you have to put all the pieces in the right place so that the big picture can be achieved. So here, that big picture is your mission. So the HR department ensures that every individual is playing their part, right part, so that the big picture can be achieved. So HR department is showing that you all, every individual in the organization is in the right place, performing the right thing. If one person doesn't perform, the mission will fizzle out. So we have to ensure that every individual is performing their best. That's what the HR department is going to do. It is not going to work for any particular person or any particular department. It is working for the organization, ensuring that
every individual is performing at their best for the achievement of the mission. Now here what happened? The role that HR department is to play is a bridge between the management and the employees. No matter where you go in every country of the world, the management and the employee, they always have different thinking. The management thinks that the employee doesn't want to work, and the employees have a feeling that the management wants us to work very hard and pay nothing for it. So the HR department tries to bridge this feeling up so that the managers, the management, they have a feeling that okay, these people are willing to work, and the people have a feeling that yes, we are being compensated accordingly. According to the effort that you're putting, we are being compensated accordingly. Now that compensation is to be designed to ensure that people are motivated. We design plans, policies so that people are motivated. We give them an environment to ensure that people are motivated. So that is the task of the HR department, to ensure that the environment, the whole environment collectively, the whole environment of the organization is supporting the human psyche, is able to motivate the people of the organization. So the human resource managers are responsible to create a win-win relationship, as I just told you, for both the individual employee and the organization as a whole. So what they are trying to do is they are trying to bridge up. They're trying to create an environment, a situation where the employees are getting the best benefit, so are the management, so is the management. So the management is enjoying its best parts, so are the human resource. So we try to create an environment, a situation where people at the both sides, the management side and the employee side, they are having the best possible benefit. Alright, this is the major task of the HR department, to ensure people are working and are being compensated accordingly. Now compensated accordingly, it doesn't mean that by hurting the management. If we will pay more, definitely the management will get hurt. So we don't want to hurt the management. We want to pay the best possible. So what we do is, we try to increase the production. We try to make people performing. So when the people are performing more and more, so definitely profit will be increasing. So when the profit is increasing, now we want the people to get share of their extra effort. So when these people will be compensated accordingly, it is not hurting the manager because the manager is making extra money. Before they were producing 30 units, now they are producing 35 units. So 5 extra unit production is there. So this 5 extra unit they are producing, they can keep a chunk of it and give some chunk to the employees. So the employees will be motivated, happy, everyone will be happy. The management will also be happy because they are earning more comparative to what they used to be doing before. Okay? Any question? Human resources is a very major role in any departments, but in Pakistan there is no concept of HR. That's why employees are making the unions in departments or companies. Yeah. Actually, HR department doesn't discourage union. In fact, we encourage. The HR department do encourage that yes, every organization must have a union. Now the trade union actually has been designed with a very different mindset, and the action or the function of the trade union has become negative today. But actually the trade union was, in the absence of HR department, was doing the same function, trying to find a win-win situation for both. That is actual task of the trade union. Trade union task is not to call a strike every second day. The trade union function was actually to ensure that the employees are putting their best effort and the management is compensating them to the best possible extent. That was the idea of trade union. So HR also today do encourage that we should have trade unions, but this trade union should be functioning for the purpose they have been built. Today in Pakistan, what happens? We have trade unions. The leaders of the trade union, they are not working at all. They are playing cards, having alcohol and sitting in one side.
and the rest of the people are working, and this trade union leaders, they are only working for the management. They are ensuring the management फिकर नहीं करे, employees strike में नहीं जाएंगे. तो purpose ये नहीं था असल में. The purpose was different. अगर कहीं सर HR है भी ना तो वो ये करते हैं कि बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं. Yes, that is true. देखिए, HR is something not from the outside. It's not like we are all angels in HR department. What happens? The HR department people are also being hired. Now they want to survive too in the organization. If they will show the management that I am working too much for the employees, the management will say goodbye जी, आप जाइए, हम ऐसे ही सही थे. So उनको management को खुश रखना पड़ता है. So definitely वो गलत काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ भी टाइम चाहिए. कह सकते हैं कि अभी मेच्योरिटी टाइम चाहिए हमारे यहाँ. हुआ क्या, अभी हमारे यहाँ जब इनिशियली HR डिपार्टमेंट आया पाकिस्तान में, तो अगर आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो देखेंगे जिस शख्स के रूम के बाहर लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन, उसी शख्स के एडमिनिस्ट्रेशन का तख्ती हटा के लिख दिया गया HR, और बाहर लोगों ने ये कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR. Now administration is entirely different than HR, because administration is a department which has been created to facilitate. HR has not been created to facilitate. HR has been created to ensure that people are enjoying their work. That is the purpose. It is also related with the hiring of the people. Hiring, that was initially one purpose. So if the employee is not performing well, so फिर HR की ऊपर आती है फिर सिलेक्शन. देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को डिटेल में बताएंगे, अभी आपको इतना बता रहा हूं कि एक HR डिपार्टमेंट का बंदा मार्केटिंग, फाइनेंस, IT हर चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता. तो HR डिपार्टमेंट एक्चुअली हायर खुद नहीं करता कुछ भी. HR हम कहते हैं यार HR डिपार्टमेंट से दोस्ती है तो तुम्हें जॉब वहां पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. HR डिपार्टमेंट का काम ना हायर करना है ना फायर करना है. HR डिपार्टमेंट का काम है हायरिंग एंड फायरिंग को फैसिलिटेट करके दे दे. फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एक रिक्विजिशन आता है कि मुझे एक बंदा चाहिए, और वो बंदा कैसा चाहिए पूरा डिटेल आप देंगे, स्पेसिफिकेशन आप देंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देगी भाई ऐसा बंदा चाहिए. अब HR का काम होगा इस तरह बंदा तलाश कर ले. अब क्या होता है, जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो मुख्तलिफ कंपनी से मुख्तलिफ तरीके का आ रहा है. कुछ भी पहले क्या होता है, HR डिपार्टमेंट वाले अकेले इंटरव्यू ले लेते हैं, फाइनल 3 या 4 शॉर्टलिस्ट करके मार्केटिंग मैनेजर को बुलाते हैं, भाई ये 3 बंदे हमें बेहतरीन लगे, आप देख लीजिए इनमें से बेस्ट कौन है. फिर वहां से सिलेक्शन होगी. कुछ क्या करते हैं, पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले HR के साथ मिलकर इंटरव्यू ले लेते हैं, और एंड में HR वाले उनका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन में क्या परफॉर्मेंस रही, वहां पे क्यों छोड़कर आए, क्या मसला था, और उनका बैकग्राउंड चेक करके फिर देखते हैं ये बंदा बेस्ट, इसको हायर कर लेते हैं. जी हाँ, उन्होंने डिजाइन HR वाले करते हैं, स्पेसिफिकेशन उस मेजर डिपार्टमेंट से आता है. जी हाँ, वो मिशन होता ही नहीं है, वो एम्प्लॉयज ले आते हैं, बस उसके बाद रख देते हैं. काफी कंपनीज करती है, जैसे नए MBA होते हैं, निकल गए उनको रोक लेते हैं जी मार्केट में. तो चाहे हमारे पास है, जी हाँ, तो इनको भी बोला ही जाता है या फिर ये कुछ करके रहते हैं? नहीं बोला जाता है. HR डिपार्टमेंट देखिए खुद हायर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, और HR वाले आपको निकाल देते हैं, और आप मार्केटिंग मैनेजर के बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं. HR डिपार्टमेंट को पता ही निकाल दिया, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहे हैं जी हम तो पूरा फ्लॉप हो रहे हैं इस बंदे को निकालने की वजह से. या HR डिपार्टमेंट वाला एक बंदे को अपने तौर पर हायर करता, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता भाई ये बंदे को आप हायर कर लो, अब रख लो अपने पास. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता भाई मेरे पास तो इस बंदे के लिए काम ही नहीं, मैं इसको बैठा के रखा हुआ. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला इनिशिएट करेगा जी इसको निकालना है, वही इनिशिएट करेगा जी इस बंदे को हायर करना है, एक बंदा में चाहिए. अब वो बंदा चाहिए, रिक्विजिशन आ जाएगा HR डिपार्टमेंट में, देन HR डिपार्टमेंट विल go on with the rest of the tasks. But HR cannot go and hire anyone they want for any department or fire anyone they want. दोनों चीज डिपार्टमेंट से इनिशिएट होता है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर हेड जो कहेगा ये भाई मुझे ये 2 बंदे निकालने हैं, अब HR देखेगा पॉलिसीज क्या, रूल्स कैसे है, कैसे निकालूं मैं इनको, वो सारे निकालने का प्रोसेस HR रन करेगा. वो देखिए वो पॉलिटिकल बेस पर हायरिंग आपकी. जी हाँ, वो पॉलिटिकल बेस है भाई, जो हुकूमत आती है वो कहती है मेरा 50 बंदा रखना है आपने.
एचआर को ऊपर से हुकूमत ने क्या दिया, भाई ये 50 बंदे मेरे हायर करना है। अब पीपल्स पार्टी है, उसने कहा भाई ये 100 बंदे मेरे ले लो, एमक्यूएम ने कहा 100 बंदे मेरे ले लो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक तो आप डीसी देखिए तो यही मतलब ऐसे लोग भी हायर कर लिए गए पोलिटिकली जिनको आपने सिग्नेचर नहीं करने आते थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो तो आप जैसा कराची यूनिवर्सिटी में भी हमारे साथ क्या होता है, जब हम एग्जाम ले रहे होते तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जो यूनियंस है वहां पे, वो हमें चेयरमैन को लिस्ट दे देते हैं, जी ये 3 बंदे मेरे कारकुन हैं। वो 3 बंदे ऐसे होते हैं जिनको अपने क्लास में कभी देखा हुआ नहीं होता, वो पेपर पे भी बैठते हैं, ब्लैंक कॉपी देके जाते हैं और उनको होता है भाई ये कारकुन है, उन कारकुन को इतने मार्क्स चाहिए, लिख के दे देते हैं 70 मार्क्स 80 मार्क्स, इसको 90 मार्क्स, जिसको इतना मार्क्स है आपको उतना मार्क्स देना है। तो वो टीचर का भी कोई काम नहीं हो, बंदा कुछ भी नहीं जानता और उसको 80 मार्क्स मिल गया, बिकॉज वो पहले से लिस्ट आ जाता है। देखिए, आई विल नॉट से दैट हमारे यहाँ चेंज मुमकिन नहीं है, चेंज विल कम, इट विल टेक टाइम। ग्रेजुअली चेंज होगा। सर पीआईए में तो ऐसा एग्जाम्पल दिया है जो विटनेस कि एक पॉलिटिकल सोर्स की उनको पायलट रखना है इसके लिए मेडिकल मतलब पायलट तो बस मेडिकली अनफिट है पायलट। तो मेडिकल अनफिट है तो ऊपर से आया कि हमने आपको इसका मेडिकल कराने के लिए कहा था, हमने इसको रख नहीं किया, इसको रखो और फिर पे इसका इलाज है और पीआई इसको रखा, फिर इसका रेडमेंट भेजे, उसका इलाज करवाया। उससे मेरी भी कहने का होती है कि एचआर पीआई ने हायर कर लिया, बट एचआर डिसाइड करेगा whether he is like can perform the job or not। देखिए, एचआर भी कोई बाहर से बंदा तो नहीं है ना, एचआर वैसे मैं क्या कोई अल्लाह का बनाया हुआ डिपार्टमेंट तो नहीं है, इंसान है। अब उसको ऑर्डर आ रहा है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी सुनना पड़ेगा, तो एचआर डिपार्टमेंट को भी सुनना पड़ेगा। जब ऊपर से ऑर्डर आ रहा है इस बंदे को हायर करो, करना पड़ेगा। तो आप ये एचआर है तो ऐसा नहीं कोई आपके खास। देखिए, वो तो फिर आप किसी चीज भी, अब पुलिस वाला आपको रोकता है, रिश्वत देके छिप जाते हैं, तो पुलिस खत्म कर दे सारे, कि फायदा क्या पुलिस को रखकर। तो कुछ ना कुछ तो रोल प्ले कर रहे हैं ना। अगर आप समझे कि एचआर नहीं होता तो चीजें और खराब होती, एचआर की वजह से एटलीस्ट 10% इंप्रूवमेंट तो है। अगर आप मुल्क से पुलिस निकाल दे तो निजाम तबाह हो जाएगा। पुलिस रिश्वत ले रही है, डाकू को पकड़ नहीं रही है, डाकू को हेल्प कर रही है, सब कुछ के बावजूद भी एटलीस्ट 30% आपको सेफ्टी तो है पुलिस की वजह से। तो हल ये नहीं है पुलिस को खत्म कर दें, हल ये कि इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसको सोचे। तो इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट को भी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं ये सोचे। अभी तो बहुत सारे जगहों में ऐसे हैं कि जो एचआर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो एचआर उन्होंने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है और एचआर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, उनको ये नहीं पता मेरा काम क्या है। वो तो नॉर्मल एज अ कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। एक कंपनी में मेरा स्टूडेंट एज एन एचआर मैनेजर गया, वहां के उसको काम दे दिया कि आप देखिए कैंटीन में खाना डेली सही पकता है नहीं पकता। वो एचआर का काम थोड़ी जाके, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। वो खाना चेक कर रहा है, गंदगी सफाई हुई नहीं हुई सब चेक कर रहा है। बहुत देखिए, एटलीस्ट आपको एज अ ह्यूमन यू कैन डू मेनी थिंग्स, बट व्हेन यू स्टडीड इट यू नो दिस इज माय एरिया। So without education, you will not know what your area is. So you have to study. सर इसी से रिलेटेड जो आपने सवाल करना था, दो तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। जो लोग हायर हो जाते हैं सर सही ऊपर में भर्ती कर देते हैं। उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है कि फार्मों को फील होता है कि यार ये हमें जैसे बताया गया कि हमें बहुत से काम करना पड़ रहा है, बहुत कम काम ले रहा है, ठीक है। और दूसरा सैलरी का भी प्रॉब्लम आता है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ इससे ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी केसेस है जिसको एचआर आपने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि एचआर ट्रीट नहीं करता। देखिए मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, एचआर भी इंसान है। एचआर डिपार्टमेंट कोई अल्लाह का बनाया हुआ अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, हम इंसान ने क्रिएट किया, हम में से जो मार्केटिंग मैनेजर है वैसे ही एक इंसान एचआर मैनेजर है। अब एचआर मैनेजर को आप कितना फ्रीडम देते हैं काम करने का उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने उसका हाथ पार बांध के बांध दिया आपने और कहते हैं तुम फंक्शन ही नहीं कर रहे, तो डिपेंड करता है आपको कितना फ्रीडम दिया गया है, कितना ऑटोनॉमी है उस एचआर मैनेजर के पास, उसी तरह वो काम करेगा। अच्छा ये भी नहीं कि दुनिया के जितने एचआर डिपार्टमेंट के लोग हेड हैं सब बड़े जबरदस्त एचआर के एक्सपर्ट होंगे। कुछ है एक्सपर्ट एचआर डिपार्टमेंट को फ्रीडम भी मिला हुआ है और उनको काम करना नहीं आता, अब उनको परफॉर्मिंग करना नहीं आता, तो वो भी है।
You have got cake for him? मुबारक हो पैसे मुबारक तो और बेटा जी हाँ, इसका मैं मुबारकबादी दे दिया, तो दोबारा इसलिए नहीं दे रहा, मैंने इनसे कहा था मिठाई के साथ ही मुबारकबादी में मजा आता। जी हाँ। तो बकरी दिया था या गाय दिया था? आपके बेटे के लिए तो गाय होनी चाहिए थी। आप तो काफी वजनी है माशाल्लाह। एनीवे, कलेक्टिवली मुबारक पूरे क्लास और इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको। एंड देन हम एक एडवांटेज ये है कि एक ह्यूमन रिसोर्स का इजाफा हुआ। तो दिस मच इज क्लियर। एनी क्वेश्चन हियर? सर घर में भी जो लोग लाइक चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रांसफर अकाउंट वो भी गारंटी नहीं है, वो करते हैं तो गारंटी डेफिनेटली वो भी है। लास्ट टाइम जो आप एक्चुअली तो उसमें इतना जबरदस्त लाइक वो बात बढ़ गई थी कि बात ये आ गई थी कि रिसोर्स की मांग ही ना रहे। यहाँ पे बात आ गई तो थोड़ा जाता है, लेकिन इसका अपना कोई नहीं है। चाहे इतना ज्यादा जो ट्रांसपेरेंट देखता है लोगों की वो फैसला करता है उसके बारे में अंदर चला जाता है, सोचता है कि क्या सोच रहे हैं, लेकिन इसके अपना जो रोल मुझे लगता है कि उसके डिसीजन मेकिंग नहीं है। चेंजिंग को लाइन होंगे तो सर ये खुद एक इंस्ट्रक्शन में चल रहा है, अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर चैनल चल रहा है ये डिपार्टमेंट। चेंजिंग तो नहीं लाइन है, हमारे मुफ्त की लड़ेगा कैसे देखिए, बात यह है कि लाजमी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर के ऊपर प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम भी है एचआर को, वो काम भी कर रहा है, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। आप सिनेरियो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान का मोस्टली जो है हमारे पास क्या चिन्योटी, मेमन्स एंड देरीस ऑफ द ग्राउंड बिजनेस को मोस्टली ओन करते हैं। अच्छा, ये लोग सेठिया कंपनीज मोस्टली रन कर रहे हैं, वन मैन शो। एक सेठ है, वो सेठ सारे फैसला ले रहा है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट में भी जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हेनरी फॉयल ने, उसके बाद उससे पहले ये फ्रेडरिक विल्सन टायलर ने, फिर आपके गिलगिट्स ने, इन सबों ने एक बात कही कि जी ओनर मैनेजर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओनर कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। वी शुड हैव हायर्ड मैनेजर, एक्सपर्ट मैनेजर्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करके काम करवाया। तो आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे फंक्शन कर रही है, एचआर डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं वहां पे। कोई एक बंदा आप अननेसेसरी हायर करके वहां के दिखा दें, लीवर ब्रदर्स में, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में या ऐसे कोई कंपनी में एक बंदा हायर करके दिखा दें, इम्पॉसिबल। तो वहां पे एचआर डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त फंक्शन कर रहे हैं और एचआर डिपार्टमेंट ने वहां के लोगों को ऐसे इन्वायरमेंट दिया है कि वहां से कोई जॉब छोड़ना भी नहीं चाहता। यानी कि 24 घंटा काम करवाते, मगर इतना यश दिया हुआ है कि वो बंदा 24 घंटा काम करके भी खुश। मतलब उनका अगर जेनेवा में हेड ऑफिस है तो जब जेनेवा में रात है हमारे यहाँ दिन है, और जब हमारे यहाँ दिन है तो उनका शाम, हमारे रात में उनका दिन है, तो वो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे अपने एम्प्लॉइज को वहां से मैसेज करते हैं कि जी अभी जल्दी से इंटरनेट पे आ जाओ, ये काम करना है। और वो बैठ के रात को घर में बैठ के इंटरनेट पे काम कर रहा है बंदा। बट उसके यशी क्या है, उसको पूरे दुनिया घुमा देते हैं वो थोड़े से अरसे में। यानी कि ऐसा अगर आप वहां पे इंटर्नी भी जाते हैं तो इंटर्नशिप में आपको पाकिस्तान वगैरह पूरा घुमा देते हैं। 18,000 20,000 रुपए आपको इंटर्नशिप के दौर में दे रहे होते हैं। तो बट वो जो हायर करते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट पूरे छान कर देख कर बेस्ट पॉसिबल बंदे को हायर कर रही होती है। एचआर हमें काफी ड्रीम दिखाना है कि आप या ना मिले वो चीज से कैसा फील होता है? डेफिनेटली यू फील बैड। एक्चुअली देखिए, जब हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अभी हम इंटरव्यूज में पढ़ेंगे एक चैप्टर में। तो इंटरव्यू में भी ये होता है कि हम कहते हैं कि जी इंटरव्यू का एरर है। एरर क्या है कि आप एम्प्लॉय को अननेसेसरी ख्वाब दिखा देते हैं कि यहां आओगे तो यही फायदा होगा। एम्प्लॉय जब आ जाता पता चला कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये एरर ऑफ इंटरव्यू है, शुडंट बी डूइंग इट। अब इसका ये मकसद नहीं, कोई भी एचआर मैनेजर ये गलती नहीं करता होगा, करता है जब भी तो एरर कहा गया कि ये एरर है, बट पीपल आर डूइंग इट, मेनी आर नॉट डूइंग इट। तो ऐसा नहीं कि एचआर पढ़ने के बाद या मार्केटिंग पढ़ने के बाद या फाइनेंस पढ़ने के बाद आप परफेक्ट हो जाते हैं। अब फाइनेंस में कोई गलती आप नहीं करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन में या मार्केटिंग डिसीजन में आप कोई गलती नहीं करेंगे, एचआर डिसीजन में कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं। या ह्यूमन, यू विल मेक एरर्स, यू विल डेफिनेटली मेक एरर्स।
बायसेस होती, इंटरव्यू के वक्त बंदा अपने तारीफ करने लग जाता बहुत सारी जगह में, तो ये भी एरर है। एचआर डिपार्टमेंट के लोग भी एरर करते हैं और नॉन एचआर भी एरर कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली एचआर इज ऑल्सो ह्यूमन, एरर तो वहां पे भी मुमकिन है। देखिए फंक्शंस जो हैं हम पढ़ेंगे आगे, काफी सारे फंक्शंस है। हायरिंग एंड फायरिंग तो एक परमानेंट चीज है जो लोग समझते हैं बस यही एचआर है। लोगों को इंडक्ट करना, यानी कि अगर एचआर के आप बात ये समझ लें कि प्री हायरिंग से पोस्ट रिटायरमेंट तक जितना काम है सब एचआर का है। आपको अभी हायर नहीं किया तो आपके लिए एड बनाना मेरा काम है। मार्केटिंग में भी एचआर इन्वॉल्व होती है? मार्केटिंग में एचआर इन्वॉल्व नहीं होती। नहीं, मार्केटिंग में क्या करेगी एचआर? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बंदे हायर करना, पॉलिसी बनाना बहुत एचआर का काम है, और मार्केटिंग नहीं करते वो। ठीक है, वो सिर्फ एम्प्लॉय को हायर करने से पहले जो काम है वो सब कर लेगी। फिर एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एड देना है, वो ऐड देगी। फिर इंटरव्यू अरेंज करना है, इंटरव्यू अरेंज करेगी। फिर उसको कंपनसेशन डिजाइन करना है कि किसके पैसे कितने होने चाहिए, वो देखेगी। फिर हायर करते ही उसके लिए इनिशियल ट्रेनिंग देखना है, वो इनिशियल ट्रेनिंग देखेगी क्या होना चाहिए। फिर उस बंदे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कब उसको प्रमोशन देना है, कब उसको इंक्रीमेंट देना है, वो सारा चीज वो देख रहे होंगे। फिर उसके बाद बंदा को रिटायर कब होना है, रिटायरमेंट के काम वो देख रहे होंगे। रिटायर होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स देना है वो देखेगी एचआर। पूरे प्री हायरिंग से पोस्ट रिटायरमेंट तक सारे काम एचआर देखते हैं, हर इंडिविजुअल। एचआर स्पेशली अभी मिडिल ईस्ट में तो एचआर का बहुत डिमांड है। अब नेक्स्ट 5-10 इयर्स में एचआर का इंशाल्लाह यहाँ बूम आएगा। अभी मिडिल ईस्ट में जो है हर ऑर्गेनाइजेशन को एचआर एक्सपर्ट चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, एचआर जब तक जैसे मार्केटिंग की आपसे सवाल करें, इस तरह की बहुत सारी कंपनी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट जो है ना हाई को यूनिवर्सिटी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये या एचआर की डिपार्टमेंट छोटे एक हेड ऑफिस है या वहाँ पर एक डिपार्टमेंट तो है, लेकिन उसके अलावा छोटे जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर भी 1 या 2 बंदे होते हैं। जैसे टेक्निक वगैरह हेड ऑफिस जाके इंटरव्यू नहीं होगा। जी हाँ, ये भी देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट को अपने अंदाज से स्ट्रक्चर करती है। तो एचआर डिपार्टमेंट नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी किसी का कैसा बना हुआ है, फाइनेंस किसी का कैसा बना हुआ है, वो तो अपनी सहूलत के मुताबिक हम स्ट्रक्चर करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट या किसी डिपार्टमेंट का किसी भी जगह कोई स्टडी ऐसा नहीं कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। आपको तो जैसा अगर आप रेडीमेड कपड़ा जब परचेज करते हैं वो भी एक साइज है, उस वेरी करेगा, आपको थोड़ा लूज होगा या थोड़ा टाइट होगा, बहुत कम चांस है बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। तो एचआर डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट हम लोग रेडीमेड चीज तो नहीं ले रहे होते। यहाँ पे क्या होता है, हम टेलर मेड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। फाइनेंस मैनेजर की जितनी जैसी जरूरत होगी हम वैसी फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाएंगे। एचआर डिपार्टमेंट की जैसी जरूरत होगी वैसी एचआर डिपार्टमेंट बनाएंगे। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की जैसी जरूरत होगी वैसी बनाएंगे। अब जैसा प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपना प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, दूसरी कंपनी ऐसा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफरेंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए हम वैसा प्रोक्योरमेंट स्ट्रक्चर तो नहीं करेंगे जैसा रिवर ब्रदर्स का है। हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट अंदाज का होगा। देखिए एक प्रोक्योरमेंट मतलब बाहर से लेना, इंडक्ट करना चीजों को। एक तो प्रोक्योरमेंट होता है जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा होता है। एक एचआर के अंदर प्रोक्योरमेंट होता है जो कि बंदे को हायर करता है। ठीक है, उसको हायरिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। तो एचआर के अंदर ही आजकल एचआर का काम एक्चुअली इतना बढ़ चुका है कि मोस्टली बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया। पहले ये सारे सब डिपार्टमेंट ऑफ एचआर होते थे। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। ट्रेनिंग का बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट है, पॉलिसी मेकिंग का बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट का बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एचआर मैनेजर बैठा हुआ है, हेड बैठा हुआ है, एचआर डायरेक्टर बैठा हुआ है, और उसके अंडर में एक बंदा है जो कि उसका असिस्ट कर रहा है, प्रोक्योरमेंट में एक बंदा असिस्ट कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग में एक बंदा असिस्ट कर रहा है, ट्रेनिंग में, इस तरह अलग अलग चीज। तो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ क्राइसिस था। आइदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था वॉर के बाद, या फैमिली में कुछ ना कुछ कोई किसी का डेथ हो गया, तो एक वेलफेयर मैनेजर बनाया गया, एक वेलफेयर डिपार्टमेंट कि जी एम्प्लॉयज के वेलफेयर को देखना है। अब एम्प्लॉय के वेलफेयर में अर्ली क्या था, इनके लिए इंटरटेनमेंट का इंतजाम करना, पिकनिक्स ऑर्गेनाइज कर लिया, इस टाइप के छोटे छोटे काम वो कर रहे होते थे।
फिर इसी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दिया गया कि जी ऐसा करो, लोगों को हायरिंग एंड फायरिंग का काम आप लोग संभाल लो। तो वेलफेयर डिपार्टमेंट जो लोगों को हायर कर रहा है, लोगों को फायर कर रहा है, वो वेलफेयर डिपार्टमेंट देख रहा था। फिर उसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा काम मजीद दिया गया कि देखिए जी आप थोड़ा सा सैलरी भी डिजाइन कर लो, कंपनसेशन को देख लो, इस सब चीज़ों को देख लो। तो वो हो गया पर्सनल डिपार्टमेंट। फिर पर्सनल डिपार्टमेंट के ऊपर मजीद काम आता चला गया। वो सारे काम जब आने लगे तो उनको बेस पे फिर वो HR डिपार्टमेंट आ गया। अभी तो हम HR डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में HR पढ़ रहे हैं, बाहर SHRM पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब क्या हो गया, वो कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी को देखते हुए HR डिपार्टमेंट सारा काम करता है। वो लाजिम हो गया HR डिपार्टमेंट के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी से अपने पॉलिसी को सिंक्रोनाइज करे। तो जब तक अपने पॉलिसी को सिंक्रोनाइज नहीं करेगा काम नहीं चलेगा। तो लिहाजा सिंक्रोनाइज करना लाजिम हो गया। तो हाँ, तो HR डिपार्टमेंट जिस कंपनी में होगा उस कंपनी की स्ट्रेटजी से सिंक्रोनाइज करेगा अपने आप को। ठीक, तो अब जिस ऑर्गेनाइजेशन वो अपने क्या किया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहा है। तो अब हम कहते हैं कि HR डिपार्टमेंट इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए बाहर आ गया SHRM, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग बाहर कि जी वो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी सिंक्रोनाइज करके आपने सारा काम करना है। जी इंशाल्लाह ताला यहाँ भी आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जी इसमें आएगा बिल्कुल। लोगों को टैक्टिक्स सिखाई जाती है, स्ट्रेटेजीज और रणनीति सिखाई जाती है कि लोगों का काम भी नहीं करना और उनको एंगेज रहना। देखिए झुकाव में ज्यादा कंपनी ही। देखिए बात यह है कि ऐसा कुछ HR के अंदर नहीं है कि लोगों को HR के अंदर ये सिखाया जाए कि लोगों को बेवकूफ बनाकर बस काम करवाते रहो। ऐसा नहीं है, ऐसा HR में नहीं है। देखिए थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस है। किसी ने कहा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। तो नऊज़ु बिल्लाह कुरान में कोई डिफेक्ट नहीं है, वो लोगों में डिफेक्ट है। लोग सही फॉलो नहीं कर रहे कुरान को। तो इसी तरह HR भी बहुत सारी बातें बता दिया, लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे। तो HR में फॉल्ट नहीं, वो लोगों में फॉल्ट है। लोग उस तरह चल नहीं रहे जिस तरह से कहा गया चल। कुछ ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप जाइए किसी अच्छे कंपनी में और आप फॉर एग्जाम्पल उनका मैनेजर पोस्ट के लिए बंदा जो है उसको देते हैं ₹1,00,000 और आप वहां जाके कहते हैं जी 70,000 लूंगा, मेरी डिमांड 70,000 है। तो आपको जब हायर कर लेंगे अगर तो आपको ₹1,00,000 देंगे, जबकि आपने कहा मेरी डिमांड 70 है, वो आपको देंगे ₹1,00,000। HR डिपार्टमेंट नहीं कर रही ना वो। तो ऐसा नहीं कि HR डिपार्टमेंट कम पैसे में हायर करना चाहती है। ये तो एक हमारे यहाँ सेठिया कंपनीज में ये चीज चल पड़ा, जैसे मैंने कहा वो HR का बंदा ही नहीं है। हमें तो देखना पड़ता है बंदे को मोटिवेट रखना। अब जैसा आपने जॉब में आ गए, आप अब जॉब में आने के बाद आपको पता चला आप मैनेजर एक डिपार्टमेंट का आपको 60 मिल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर वो भी नया नया हायर हुआ 80 ले रहा है, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो HR का काम ये थोड़ी कि एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट कर दे। तो हम क्या करते हैं, हम स्लैब बना देते हैं कि जी 80 से स्टार्ट होगा और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो 1,20,000 तक जाएगा। 1,20,000 के बाद उसकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी। तो मैनेजर रहेगा 80 से 1,20,000 तक, नया आया 80 से स्टार्ट होगा, एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा, उसको एक बार 1,20,000 तक लेके जाएंगे। जैसे 1,20,000 में आया स्लैब चेंज होगा, वो नया डेजिग्नेशन आ जाएगा उसका। ये HR का तरीका है काम करने का। तो वो कम सैलरी में कैसे हायर करेगा, 80 से नीचे हायर करेगा तो मैनेजर हायर ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मैनेजर कंपनी में मैनेजर का स्लैब स्टार्ट 80 से हो रहा है और मैं उसको 60 दे रहा हूं, तो वो मैनेजर बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्लैब बनाया हुआ है। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है जी, कोई 2,000 में आ रहा है उसको भी रख लो मैनेजर, वो एक अलग है। वहां पे HR डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस बहुत सारे। हम जब सैलरी कंपनसेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए हम कंपनसेशन डिजाइन करते हैं। देखिए एक चीज सिंपल से बताऊं कि आप मेरी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है, आप Honda 50 में जा रहे हैं क्लाइंट के पास, तो इंप्रेशन क्या पड़ेगा कंपनी पे? तो मैं आपको Honda City दूंगा Honda 50 की जगह, तो Honda City में जाए तो इंप्रेशन पड़ेगा। अब आप जा रहे हैं लुंडे के कपड़े फटे हुए पहनकर,
तो मैं आपको पैसे दूंगा कि आप इतनी सैलरी लो कि आप ब्रांडेड कपड़े पहन सको। तो वो कंपनी की पॉलिसी होगी। अब एक छोटे कंपनी को बोलेगा 50 सही है यार, क्योंकि कंपनी 50 से ऊपर सोच ही नहीं सकता। वो तो साइकिल देता था अपने बंदे को, उसने बोला चलो ये बड़ा बहुत अच्छा बंदा है, इसको होंडा 50 दे दो। तो उस कंपनी से आप दूसरे कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं कह रहा, हर कंपनी में अलग डिमांड होगा, उसके मुताबिक काम हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि एचआर डिपार्टमेंट हर जगह जो है एक ही स्टैंडर्ड लेके चल रहा है, सबको 10 लाख रुपए सैलरी देता है, ऐसा नहीं होगा। पीपीएल में जितनी सैलरी है, पीपीएल के लोगों को जितनी सैलरी मिलती है, उनका मैनेजर पोस्ट पे अगर आ गया बंदा तो 10 लाख से नीचे तो है ही नहीं किसी की सैलरी मैनेजर पोस्ट में। तो क्या पाकिस्तान के सारे ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख दे रहे मैनेजर्स को? 10,000 भी दे रहे होंगे। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये कई सौ साल से बिजनेस और ये सब चीजें चली रही है, तो अगर अगर मैं चल रही है तजारत, जी बिल्कुल। अगर मेरा बिजनेस, मैं स्टेट आदमी हूँ, पढ़ा लिखा, मुझे मैट्रिक तो मेरा बहुत जरूरत है, मैं क्यों उस एचआर क्यों बनाऊंगा? मेरे मौका पे मेरा चल रहा है और अच्छा चल रहा है। देखिए, आप ये जो नेस्ले के बॉटल्स होते हैं ना प्लास्टिक के, उसका फ्लैट करें, बिल्कुल फ्लैट। उसके बाद आप उसको पैर के नीचे रखें और एक रस्सी से बांध लें, बेहतरीन जूते का काम देगा। ठीक है? और आपको कांटे भी नहीं चुभेंगे, ना गर्मी लगेगी, आप जहां जाइए, बल्कि पानी में भी उतरिए, खराब भी नहीं होगा। बाकी लेदर शूज तो खराब हो जाते हैं, वो खराब भी नहीं होगा। तो उससे भी गुजारा हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर आप बेहतर से बेहतर के तलाश में निकलकर शूज में आ गए और खूबसूरत शूज पहनते हैं। इसी तरह बिजनेस पहले भी लोग कर रहे थे, एचआर डिपार्टमेंट नहीं था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी नहीं था, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं थे। पहले तो एक ही बंदा सारा काम कर लेता था, मगर क्या उसका कंपटीशन कम था। अब कंपटीशन बढ़ गया, तो मुझे बेहतर काम करना है, दूसरे कंपनी के मुकाबले में आना है, तो मुझे बेहतर से बेहतर करना है। अब ग्लोबलाइज हो गया हर कंपनी, अब हर कंपनी ग्लोबलाइज हो गए। मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में सामान बेच रहा हूँ, अमेरिका में बैठ के इंडिया से कम्पीट कर रहा हूँ। मैं शान मसाला मैं अमेरिका में बेच रहा हूँ और इंडिया से कंपटीशन हो रहा है इंडियन मसालों से। तो वो कंपटीशन बढ़ गया ना, तो मुझे काम भी मुख्तलिफ अंदाज करना पड़ेगा। वो पुराना वाला अंदाज से काम नहीं चलेगा। पहले अक्सर आप जुड़िया बाजार की तरफ देखें तो एक मेमन जो है वो थैली में लेके घूम रहा होता था, थैली में लाखों रुपए का बिजनेस करता था। अब मेमन को पता है कि सबको पता है थैली में क्या है, तो मेमन थैली लेके नहीं घूम रहा होता है, चेंज हो गया मेमन भी। तो हर बंदे को माहौल के मुताबिक चेंज होना पड़ता है। यू हैव टू। सर बट काफी जो क्वालिटी होती है किसी प्रोडक्ट को एलिब्रेट करना, तो फिर ये एचआर जी हाँ, डेफिनेटली। जैसे इसकी क्वालिटी बट कोई और काम कर रहा है, बट एचआर आपको बताता है कि तुम्हारी क्वालिटी ये करो। बिल्कुल, हम यही पढ़ेंगे। कैरियर काउंसलिंग की एचआर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एमबीए फाइनेंस कर आ गया और उसको पहले कोई बंदा था, एचआर नहीं था इस कंपनी में, उसने मार्केटिंग में हायर कर लिया। अब एचआर एमबीए फाइनेंस है और हायर किया मार्केटिंग में, तो एचआर डिपार्टमेंट उसको कहेगी भाई देखो तुम रॉन्ग ट्रैक पे हो, तुम फाइनेंस की तरफ जाओ, बिकॉज तुम्हारा वहां पे कैरियर बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा कैरियर तबाह हो जाएगा। बिकॉज ये बंदा जो मार्केटिंग में काम कर रहा है, ये जब 5, 6, 7 साल जब जॉब कर लेगा, वो कहेगा जी मुझे मार्केटिंग मैनेजर बना दे, अब तो इतना दिन हो गया। हम कहेंगे जी हमारा पॉलिसी है कि जब तक आप मास्टर्स इन एमबीए मार्केटिंग नहीं होंगे, हम आपको मैनेजर का पोस्ट नहीं देंगे। वो कहता ठीक है जी, मैं ये कंपनी छोड़ता हूँ, कहीं और जाता हूँ। कहीं और जाएगा तो वो कहेंगे नहीं जी आपको हम भी मार्केटिंग मैनेजर नहीं बनाएंगे, कि आप एमबीए मार्केटिंग नहीं है। वो कहते एमबीए फाइनेंस हो, मुझे फाइनेंस मैनेजर बना दें। कहते जी आपका एक्सपीरियंस नहीं है फाइनेंस का, तो बंदा कहीं का नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है, आप काउंसिल करके ट्रैक करता है, आपको ये तक बताता है एचआर डिपार्टमेंट कि देखिए आप ये कोर्स में बैठे हुए ना, अगर आप ये 2 कोर्स कर लेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ऊपर चले जाएंगे। ये भी एचआर का काम है। बेसिक ही बताई दे रहे बंदे को, जब वो स्टार्ट कर रहा हो, जब वो चीज सिलेक्ट कर रहा हो कि मैंने एमबीए से कर, नहीं, बहुत सारी कंपनी में हायर हो चुके हैं, उसमें एचआर डिपार्टमेंट ही नहीं था, अब हायर हो गए। अब तो एचआर डिपार्टमेंट जहां पे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं वहां पे हायर ही नहीं करते हैं ऐसे बंदे को। जैसे हम लोग एमबीए एविएशन कर रहे हैं, हमें किसी भी इंस्टीट्यूट पे कहीं भी किसी एपीआई में लेके दिया कि आपको यहाँ जॉब मिलेगी, यहाँ we are not like related to the market. बिकॉज देखिए ना, पीआई में एचआर डिपार्टमेंट भी एक पॉलिटिकल बेस में हायर हुए लोग बैठे हुए होंगे। जी हाँ, अभी हर जगह एमबीए फाइनेंस एविएशन का भी कंसेप्ट नया नया आया है। अब आहिस्ते आहिस्ते डिमांड करने लगेंगे कि ये एमबीए फाइनेंस होगा तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, एमबीए एविएशन होगा तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। ये हर एयरलाइंस करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। अभी तक तो एक बैच भी मार्केट में नहीं आई ना। जब मार्केट में लोग लेके डिग्री लेके जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा ये भी आ गया पाकिस्तान में, ठीक है लेट्स हायर दिस पीपल नाउ। तब वो डिमांड करेंगे जी एविएशन में ही जो आया उसी को लेना, बाकी को नहीं लेंगे हम।
इट विल टेक टाइम। कोई भी नई चीज आती है तो उसको टाइम लगता है। कामरान ने एक बात की थी कि एक शख्स जो है जो अपना कारोबार चलाता है वो क्यों चाहेगा कि मैं हर चीज को स्पेसिफाई करूँ, वो एक ऑर्गेनाइज वे में अपने कारोबार को चलाए। तो ये चीज सर यहीं से इन्फ्लुएंस कर सकती है अगर कंट्री की गवर्नमेंट चाहे कि मैं क्योंकि हमारे जो कारोबारी लोग वो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर चाहिए होती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी होती है ISO स्टैंडर्ड वगैरह में तो सर इस चीज़ की जरूरत पेश आती है कि वो हमेशा की इम्प्रूव हो जाती है किसी भी कंपनी के कि वो एक बेटर इन्वायरमेंट सोसाइटी को भी फेस करे, उसमें लोगों को जॉब या अपॉर्चुनिटी इसके इंकरेजिंग पहलू जो होता है वो कंपनी या मालिक के लिए क्या होगा? देखिए, कंपनीज को सिर्फ इंकरेजिंग ये होता है कि अगर ये चीज हम करेंगे हमारा इनकम बढ़ जाएगा। तो अगर हम रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं किसी चीज के लिए तो कंपनी करना चाहेगी। सर अब तक जी एक तो ये आप बता रहे हैं ना, दूसरी चीज कंपनी में ये होता है ना कि इनोवेशन आएगी जब आपके पास राइट मैन बोला राइट जॉब आएगा, उसमें जो है ना वो उससे उसकी कारकर्दगी मजीद जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगी। बिल्कुल। या देखिए, मैं ये बता रहा था आपको, ये जो आप ये बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास पहले लोग समझते थे HR डिपार्टमेंट इज एन एक्सपेंस। अब HR डिपार्टमेंट को वो समझते हैं इट्स एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न बेहतर आएगा। पहले ट्रेनिंग को भी लोग एक्सपेंडिचर समझते थे, ट्रेनिंग करके कोई फायदा नहीं है। अब लोग सीख गए कि नहीं, ट्रेनिंग देंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट है, हमारे एम्प्लॉयज बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो अब ट्रेनिंग भी लोग दे रहे हैं। मगर छोटे कंपनीज अभी भी ट्रेनिंग के ऊपर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वहां पे भी HR का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। तो वी आर लिटिल बिहाइंड। अभी इंशाल्लाह ताला आएगा, तो HR कंसेप्ट पाकिस्तान में आ रहा है आस्ते आस्ते, तो थिंग्स विल इम्प्रूव डेफिनेटली। मगर अभी तक जैसा आप कराची यूनिवर्सिटी में चले जाएं, HR पढ़ा रहे मगर वहाँ पे HR डिपार्टमेंट कोई प्रॉपर नहीं है, हाल से HR पढ़ा रहे हो। सर ये इदारा नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज वो भी कोई HR नहीं, वो तो एक सिर्फ टेस्ट, देते हैं वो पूरा वो सिर्फ टेस्ट लेना होता है, उनका काम होता है टेस्ट लेना। वो NTS की बात कर रहे हैं ना ये? HR की तरह से कंसल्टेंसी है वो। नहीं, वो तो पूरे HR कंसल्टेंट अलग है। ये क्या है, ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के लिए, कॉलेज के लिए, कंपनीज के लिए टेस्ट डिजाइन कर देते हैं, टेस्ट डिजाइन कर टेस्ट दे देते हैं NTS वाले जो है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट भी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में कंसल्टेंट्स बहुत सारे हैं। जी हाँ, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो कि लोकली भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल है। आपके जो फॉरेन हायरिंग एम्प्लॉयमेंट जो है, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, ओवरसीज, हाँ, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है वो यही कर रहे हैं, आपके HR ही को सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर मुल्कों में यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स भेज रहे होते हैं। मतलब अब काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स को सब डिवाइड कर दिया गया है। HR में भी जैसे पॉलिसी जो देखना है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी तरीके से स्टडीज भी करवाने शुरू हो रही है। जी हाँ। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, जी हाँ, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो भी नहीं है। अब मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत पुरानी चीज है। बाहर रियल एस्टेट में MBA हो रहा है, ठीक है, रियल एस्टेट में MBA कर रहे हैं बाहर। जो आपके यहाँ पे स्टेट एजेंसी में लोग बैठ के उसके ऊपर MBA हो रहा है। बिल्कुल है। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे वहाँ ही पढ़ाता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो वहाँ भी जो पढ़ाता मैं HR पढ़ाता हूँ, वहाँ पे HR पढ़ाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी HR कोर्स। अब बहुत लंबी बहस है। नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज है। देखिए, व्हाट इज पब्लिक? मासेस, ह्यूमन मासेस, ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम ये पढ़ाते हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, जैसे मैंने कहा था, फैसिलिटेट करना। तो वहां पे स्टूडेंट ये पढ़ते हैं कि जब हम बाहर मार्केट में जाएंगे, जॉब करेंगे, तो मुझे लोगों को फैसिलिटेट कैसे करना है, आवाम को बिजली कैसे प्रोवाइड करना है, गैस कैसे प्रोवाइड करना है, रोड कैसे प्रोवाइड करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम है कैसे प्रोवाइड करना है, सारी चीजें फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करनी है। दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग देयर। Now, human resource management is the function within an organization that deals with issues related to people such as compensation. अब जो आप बात कर रहे हैं, क्या क्या कर रहा है? कंपनसेशन है, हायरिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, सेफ्टी है, वेलनेस है,
benefits है, employee motivation है, communication है, administration and training है. All this is what HR department is looking out for. HR डिपार्टमेंट ये भी देख रहा है कि कंपनसेशन कैसे डिजाइनिंग करना है, लोगों को हायर कैसे करना है, परफॉर्मेंस लोगों की कैसे मैनेज करना है. हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद भूल जाते हैं तो लोगों की परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी. मैंने ट्रेनिंग दिया, अब मेंटेन करना है कि ही परफॉर्मेंस लोग मेंटेन करें, इससे नीचे ना आए. जी हाँ, तो वो चीज़ ही सारा कुछ HR का काम है कि कंपनी को किस तरह डेवलप करना है, लोगों को सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करना है, लोगों के वेलनेस के लिए देखना है कि उनको ऐसा इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो बीमार ना पड़े, तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो. ये छोटे छोटे चीज़ें, फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारा HR को देखना चाहिए. अब फिजिकली प्रैक्टिकली हो रहा नहीं हो रहा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. जो हम पढ़ा रहे हो तो ये कहते हैं कि आपके रिसेप्शन में एक खातून बैठी हुई है सुबह 9 से 5 8 घंटा. अगर आप उसको ऐसा चेयर दिए हुए जो वो घर जाते हो कहती कमर में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे प्रॉपर. ऐसा चेयर दें कि उसको कमर में दर्द ना हो. हर चीज परफॉर्मेंस को ईज करना है. नाउ सब कुछ, एवरीथिंग इज सेफ्टी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज देयर डेफिनेटली. नाउ देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट द HR डिपार्टमेंट हैज टू फेस. जब भी आप लोग बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, तो बहुत सारे रीजन है जिसके लिए ऐसा नहीं हो पा रहा. ये चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस को बीट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, one thing is that global competitive is there. So now we have to see things globally. जो काम भी हम पॉलिसी यहां बना रहे हैं, हमें देखना है कि इससे ग्लोबल मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारे प्रोडक्ट है, हमारा सर्विस है, ये सब कुछ ऐसा हो कि ग्लोबली कंपटीशन में हम जा सकते हैं. हमारे इतने प्रोडक्ट्स ग्लोबली बाहर कामयाब नहीं जितने इंडियन प्रोडक्ट्स हैं. इसलिए उन्होंने अपने HR को ज्यादा अच्छा मेंटेन किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं. पाकिस्तान के पास बड़ा चीप लेबर बहुत मकदार में मौजूद है. देखिए, पॉपुलेशन ज्यादा होने ही काफी नहीं है, उस पॉपुलेशन को मेंटेन करना, मैनेज करना इंपॉर्टेंट है. चाइना ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया है, इंडिया ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया है. आपके पास भी पॉपुलेशन बहुत है, सरप्लस पॉपुलेशन है पाकिस्तान का भी, आपने मैनेज नहीं किया. आपके अच्छे खास से चंक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टोटली यूजलेस, अच्छे खासे लोग यूजलेस है टोटली. तो ये आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं किया प्रॉपर्ली. अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है HR डिपार्टमेंट के लिए, बिकॉज जो मास्टर में जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहा है उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा होता है. एंड दैट डेफिनेटली पुट्स अ चैलेंज ऑन द HR डिपार्टमेंट. देन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. HR जो काम कर रहा होता है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को नहीं देखना, उसका सोशल लाइफ भी देखना है. और फॉर एग्जाम्पल, पहले ज्वाइंट फैमिली का एक ज्यादा कंसेप्ट था हमारे मुल्क में. तो ज्वाइंट फैमिली में क्या हो रहा है कि अगर एक घर में 20 लोग रहने वाले हैं तो तकरीबन 6-7 काम भी कर रहे हैं, कि भाई भी काम कर रहा है, बाप भी कर रहा है, दूसरा बेटा भी कर रहा है, तीसरा बेटा भी कर रहा है. तो काफी सारे लोग काम करते हैं और सब एक साथ ही रह रहे हैं. तो आपका घर का अगर रेंट भी है तो रेंट डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड हो गए, खाने का खर्चा डिवाइड हो गया, सब डिवाइड होकर इजली गुजारा होता था. तो अब क्या हो गया कि डिवीजन हो गया, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गया. अब हस्बैंड वाइफ सेपरेट होकर रह रहे. जब सेपरेट हुए तो पूरा घर का रेंट एक बंदे के ऊपर पड़ गया, पूरा बिजली का खर्च एक बंदे के ऊपर पड़ गया, खाने का खर्च एक बंदे के ऊपर पड़ गया. तो जरूरी हो गया हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करें. अब कपल जॉब्स कर रहे हैं मोस्टली हमारे यहाँ. अब एक जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और पीछे 2 महीना या 3 महीना 4 महीने का बच्चा है, उसको किसके पास छोड़ के जाए? ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी HR डिपार्टमेंट का है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बड़े कंपनी फैक्ट्रीज के अंदर हमने डे केयर सेंटर बना दिया कि ठीक है जी, माँ आए, बच्चे को डे केयर सेंटर पे छोड़ दिया, अपना काम भी कर रही, शाम को डे केयर सेंटर से बच्चे को पिक किया, घर चले गए. दिस हैड टू बी डन बिकॉज ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट. शॉपिंग मॉल वगैरह जी हाँ, बिल्कुल. बहुत सारे कंपनी ने क्या किया, इवन उन्होंने
कैमरा लगा दिया है डे केयर सेंटर में कि माँ जब काम कर रही है उसको ये होता है कि ये बच्चा रो ना रहा हो, तब वो कैमरा में देख भी रही नहीं बच्चा सेट है। शॉपिंग मॉल्स में जी आप शॉपिंग मॉल पे भी प्ले एरिया बना दिया कि जी आप बच्चे को लाके छोड़ दीजिए, जी आप चार्जिंग की सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, बच्चा जो है आप घूमता फिरता रहे, तो वहाँ पे खेलता रहे, आप शॉपिंग करते रहिए। तो दिस इज द HR डिपार्टमेंट विच फाउंड दैट ये प्रॉब्लम है। इसी तरह फ्लेक्सी टाइम इंट्रोड्यूस किया गया कि अब बच्चा स्कूल गोइंग हो गया, अब स्कूल गोइंग हो गया तो सुबह 8 बजे या 9 बजे बच्चे को स्कूल पहुंचना है, कौन पूछाए, दोनों को 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, फिर 1 बजे स्कूल से पिक करना है, कैसे करें, तो फ्लेक्सी टाइम कर दिया। यदि 8 घंटा आपने काम करना, अब 8 घंटा काम कीजिए, आप चूज कीजिए टाइमिंग। सिर्फ क्या कर दिया, कोई एक टाइमिंग पीक टाइम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि 1 से 3 जो है ये हमारा पीक टाइम है, तो और हर बंदे को 1 से 3 तो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। अब आप चूज कर ले 9 से 5 काम करना चाहते हैं, या 8 से 4 काम करना चाहते हैं, या 7 से 3 काम करना चाहते हैं। ये हो गया सच, जो 1 से 3 आ जा रहा है इसके अंदर। दूसरा आप 10 से 6 काम कर ले, या 11 से 7 काम कर ले, या 12 से 8 काम कर ले, या 1 से 9 काम कर ले। आप चूज कर ले इनमें से कोई भी एक चीज। तो वाइफ ने चूज किया कि सुबह बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके चले जाती हूँ, तुम दोपहर में घर से पिक करके छोड़ के फिर चले जाओ ऑफिस। तो ये फ्लेक्सी टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। दीज आर द सोशल चैलेंजेस दैट वी हैव टू मीट विद। और बहुत सारी चीजें हम जॉब डिजाइन करते हैं देखते हुए कि सोशली ये जॉब एक्सेप्टेबल है भी या नहीं इस मुल्क में। बहुत सारी चीजें वी हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स। देन द मेडिकल, फूड, हाउसिंग, दिस हैज बिकम अ चैलेंज अगेन that we today have to provide medical to the employees because competitive है, मेडिकल का दूसरी कंपनी ऑफर कर रही है तो लोग वहां चले जाएंगे। ये मेडिकल अलायंस है और बहुत सारी चीजें, तो इस सारे अलायंसेस जो है हमें करना पड़ता है एक कंपनी को, बिकॉज दूसरी कंपनी दे रही है, अगर मैं नहीं दूंगा तो लोग वहां पे चले जाएंगे। तो टू रिटेन आवर ह्यूमन रिसोर्स वी हैव टू प्रोवाइड दोस फैसिलिटीज। देन देयर आर लॉट ऑफ अननोन थिंग्स हैपेंस। बारिश हो गई, तूफान आ गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, स्ट्राइक आ गया, ये सारे चीजें HR डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल मेरा एक कंसाइनमेंट है जो मुझे हर हाल में 25 तारीख को भेजना है, और मैंने हिसाब किया था कि 12 दिन लगेंगे मुझे, 12 दिन में मैं पूरा काम निपटा दूंगा। 12 दिन में 2 दिन बिजली नहीं है मेरे पास फैक्ट्री में। अननोन चैलेंज आ गया। Now I have to see how to manage कि उस तारीख तक 25 तारीख तक फिर भी मेरा कंसाइनमेंट चला जाए। We have to do that। हम यहाँ पे भी कर रहे होते, कोर्स कंप्लीट करना है, 2 संडे छुट्टी आ गई, अब कोर्स कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा टाइम रख रहे होते हैं। काम कौन करेगा? तो उस डिपार्टमेंट का काम का मैनेज करना, उस एक्स्ट्रा टाइमिंग ये सब कुछ HR डिपार्टमेंट करेगा। HR डिपार्टमेंट ही प्लान करेगा कैसे काम करना है, क्या करना है, उस मैनेजर के साथ ही बैठकर। वी हैव टू सी दैट हाउ वी कैन डू। सम टाइम हमें क्या करना पड़ता है, ओवर टाइम से बस मसला हल नहीं होता, पार्ट टाइम हायरिंग सब वो करना पड़ता है। तो यू हैव टू सी इस वक्त कौन सा बेहतर रहेगा। देन देयर आर सो मेनी एथिकल थिंग्स दैट वी हैव टू सी इनटू। बहुत सारी चीजें एथिकली राइट है, एक्सेप्टेबल है, बहुत सारी चीजें एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं किसी सोसाइटी में। एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे नहीं है बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरबिया में आपको मेल एंड फीमेल को एक साथ एक बिल्डिंग में काम नहीं करवा सकते, सेपरेट बिल्डिंग होनी चाहिए। मेल की अलग बिल्डिंग है, फीमेल के लिए अलग बिल्डिंग है, आप एक साथ नहीं कर सकते। इंटरकॉम में भी बात नहीं कर सकते अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटरकॉम में भी लेडीज सेक्शन जेंट्स सेक्शन में बात नहीं कर सकते, बहुत नेसेसरी तो आप बात कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। वहां पे एथिकली रॉन्ग है। आज से कोई 15 साल पहले हमारे मुल्क में भी एथिकली रॉन्ग था कि आप लेट सिटिंग का जॉब फीमेल को नहीं दे सकते। एथिकली रॉन्ग था, कोई कानून नहीं था, एथिकली रॉन्ग था। 5 बजे का ख्वातीन सारे चले जाएंगे, बेचारे मर्द हजरात लेट तक काम कर रहे हैं। अब तो लेट नाइट तक ख्वातीन भी काम कर रही है, नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही है ख्वातीन। तो अब वो चीज एथिकली इतना स्ट्रांग नहीं रहा मगर पहले था। इस तरह आप बहुत सारी चीजें एथिकली, फॉर एग्जाम्पल आप के पास जैसा वर्क फोर्स में हिंदू ज्यादा हैं और उनसे आप गाय जबा करवा रहे हैं, गाय की खाल खिंचवा रहे हैं, यू कैन नॉट डू दैट, एथिकली रॉन्ग है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड एक चीज, मतलब एक इशू पहले भी डिस्कस हुआ था क्लास में एक जगह, तो वो कह रहा सर मुसलमान के लिए भी तो पिग का मसला है कि पिग को वो नहीं जबा कर सकता या नहीं काट सकता।
मैं कहता कि हिंदू एंड मुस्लिम के कंसेप्ट में एक बहुत बड़ा फर्क है। आपके लिए सुअर को हाथ लगाना है, सुअर के गोश्त हाथ लगाना घिन का मसला है, इमोशनल कुछ नहीं है। मगर फॉर अ हिंदू काउ इज अ मदर, अ गॉडेस, उसके लिए इमोशनल प्रॉब्लम है। वो तो बिल्कुल गाय का गोश्त देख के उसको तकलीफ होगी कि यार ये मेरे गॉडेस का गोश्त है, तो उसको देखने ही तकलीफ दे बात है, आपके लिए घिन की बात है। तो आपका इमोशनल अलग है, आप फिर भी कर लेंगे काम, उसके लिए बहुत तकलीफ दे वो काम करना। तो इसलिए एथिकली बहुत सारी चीजें हमें देखना पड़ता है कि क्या चीज एथिकली राइट है, क्या चीज एथिकली रॉन्ग है सोसाइटी में। सर ये ईस्ट इंडियन कंपनी का भी मुझे लगता है लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें जो बगावत उनके अंदर थी। हाँ, तो वो ये जो सुअर की चर्बी, जी हाँ, तो वो उन्होंने झूठ बोला था और एथिकली रॉन्ग था, जी हाँ। एचआर का नाम मजबूत हो सर जाता है। एथिकली लाइक कंपनी जो होती है एचआर डिपार्टमेंट में, वो एथिकली क्या जो उसके एम्प्लॉयज उनको देख के एथिक्स बनाती है, एक्चुअली मैनेजमेंट बनाती है, या फिर आउटसाइड कंज्यूमर को देख के बनाती है? एम्प्लॉयज को देख के, एचआर डिपार्टमेंट तो एम्प्लॉयज को देख के बनाती है, मार्केटिंग डिमांड है उसको नहीं देखती। उसको नहीं। एचआर डिपार्टमेंट देखेगी सोसाइटी की डिमांड क्या है, मतलब एथिकली इस बंदे के लिए सोसाइटी की डिमांड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पीआईए में वो सिर्फ यूनिफॉर्म है, तो एथिकली लाइक वो उनको कहते हैं कि आप दुपट्टा सर नहीं अलाउ नहीं है, सही है। बट कोई इसमें आता है हाथी फ्लाइट होती है, हज की फ्लाइट होती है, वो कहते हैं दुपट्टा लो आप सर में। तो सर इसमें यानी कि कंज्यूमर के एथिक्स कुछ और कहते हैं, एयरलाइन के उनके एचआर को कुछ और कहते हैं, तो इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। एक्चुअली देखिए, हम एक छोटे चंक को तो देख के नहीं कराते पॉलिसी, हम बड़े चंक को देख के कराते हैं। अब हमारा जो पायलट लोग फ्लाई करते हैं, हाजी बहुत कम होते हैं, एक खास महीने में होते हैं बस, काफी बहस होती है। ठीक है। हाँ, तो वो एक खास महीने में, तो हम ये कर सकते हैं कि उस आज के फ्लाइट में बुरखा पहनाते हैं सबका, एयर से काफी लड़ाई नहीं करती, लेकिन दुपट्टा नहीं करते, बट काफी ऐसा लोग मना किया जाता है कि दुपट्टा नहीं लेंगे, दुपट्टा आपको निकाल देंगे। जी हाँ, देखिए, जी हाँ, बस एक्चुअली बहुत सारे यूनिफॉर्म का रीजन भी इसलिए होता है कि कन्वीनियंट हो जाए, कन्वीनियंस के लिए भी होता है बहुत सारी चीजें। मगर अभी सिर्फ यहाँ नहीं, अमेरिका के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर ये जो वेट्रेस है, वेट्रेस को एक खास यूनिफॉर्म पहनाया गया था, और वो वेट्रेस ने कहा कि इससे जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कपड़ा तो हम नहीं पहनेंगे। और कोर्ट में केस गया और कोर्ट में कहा कि ठीक है, ये कपड़ा कोई कन्वीनियंट वाली कपड़ा नहीं है, ये पहन के कोई काम करने में आसानी हो जाएगी, तो जो खवातीन कह रही हम ये पहनेंगे। हाँ, डेफिनेटली, इफ शी कैन सी दैट मेरे काम में कोई रुकावट नहीं है इस दुपट्टे से। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें वो कंसेप्चुअल इस्लामिक कंसेप्ट से चल ही नहीं रहा, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं चल रहा। Now one major problem that the HR managers face, that is a diversified workforce. मेरा क्वेश्चन ये था कि एचआरएम देखें इसमें कि यहाँ पे तो आउटसाइड देख के सारा वो यूनिफॉर्म सब कुछ डिजाइन किया जा रहा है कि आपने ये करना आप ये करना, क्योंकि उनकी डिमांड ये है। देखिए, ये जो कंज्यूमर के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कंज्यूमर को देखना, एचआर का काम नहीं कंज्यूमर को देखना। कंज्यूमर की डिमांड क्या है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रही होगी, या रिसर्च डिपार्टमेंट देख रही होगी। जी हाँ, उसके बाद क्या, अब एचआर देखेगा जी ये कपड़ा सुटेबल होगा लैब में काम करना। बाकी कंज्यूमर की डिमांड क्या है वो रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखेगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनका देखना है। ये लोग कंबाइन होकर मीटिंग करके देखते हैं कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक कैसे चलता है। बाकी डिपार्टमेंट को भी देख रहा होता है ना, खास करके टाइम हो गया, 3 बजे तक क्लास है ना। चलिए बस ये स्लाइड तो कंप्लीट कर लें। So diversified workforce is another challenge. What happens, especially in our country, you see, you will have a Pathan working, a Punjabi working, a Sindhi working, a Mahajir working, a Balochi working, a Saraiki working. Diversified workforce, अलग-अलग किस्म के लोग काम कर रहे हैं. Now these people, all of them will have a different culture and फिर different values, और फिर इसमें और एक प्रॉब्लम ये, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता, कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ता, कोई रफ़ादान अदा करके नमाज पढ़ता, उस पर भी लड़ाई है, ये कौन कैसे नमाज पढ़ रहा है।
तो ये सारी चीजें एक डाइवर्सिफाइड किस्म के लोग हैं हमारे पास। अब यहाँ पे डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स को हैंडल करना, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू वर्क इन अ डिफरेंट वे, so that is again a challenge for the HR department. So HR department has to ensure that the organizational culture is so strong that every individual, when he or she comes into the organization, for that 8 hours they are working in the organization, they are strictly following the culture of the organization. अपने कल्चर को भूल जाएंगे, यहाँ आएंगे आप organizational culture के मुताबिक काम करेंगे. This is also the task of the HR department to ensure that the culture is so strongly followed that people will not think about their own culture, but they will all be following the culture of the organization. This has also been one of the biggest challenges we have faced. Then, population growth. Now see, unemployment is there because we cannot provide so many jobs. So there's unemployment. Now population growth जैसी होगी, unemployment भी बढ़ते चले जाएगी. तो population growth के साथ we have to ensure that we are also increasing the number of job opportunities, which is not always possible. तो इसमें एक चैलेंज होता है कि अब पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या मैं अर्ली रिटायरमेंट दे दूं लोगों को ताकि यंगस्टर को आ सके, या ये यंगस्टर्स के या हमारे यहाँ कल्चर ये है कि बाप एज होने के बाद भी बेटे को सपोर्ट कर रहा होता है, एजुकेशन में भी, शादी के बाद भी बाप बहुत सारे घर में जो है वो बच्चे को फीड कर रहा है. तो क्या हम इसके वजह से लेट एज कर दें रिटायरमेंट के, क्या करें, अर्ली एज किया या लेट एज, दिस इज ऑल्सो चैलेंज. पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिटायरमेंट एज कब हो, हायरिंग कब किया जाए, पुराने लोगों को जल्दी फारिग करे या देर से फारिग करे, दिस इज चैलेंज. अगर जल्दी फारिग करते एक्सपीरियंस चले जाता आपके पास से, एक्सपीरियंस का कितनी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है, दैट वी हैव टू सी. किस जॉब के लिए क्या जरूरत है, कहाँ पे किस तरह डील करना है मुझे, तो लॉट ऑफ थिंग्स इज रिक्वायर्ड. तो वो एक चैलेंज है. So these are the different challenges the HR department has to face, and they have to work with these challenges. Now the other challenges which is not discussed here, politics itself is a challenge. External politics, environment, society का environment भी एक challenge है, हमें उसके मुताबिक भी देख के चलना पड़ता है. तो अननोन में हमने बात की है कि बहुत सारी चीज़ें होती है. अगर आप देखेंगे अमेरिका में इलेक्शन होता है, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट बिल्कुल बंद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है कि रिजल्ट क्या आएगा अमेरिका का, उसके बाद कुछ होगा. तो इस किस्म के और बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं. लॉ होता है गवर्नमेंट का, हम चाहते हैं कि काम इस तरह करवा ले, गवर्नमेंट का लॉ कहता नहीं. जैसा फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर बैंड है, काफी इंडस्ट्री हमारी तबाह हो गई है, स्पोर्ट्स तबाह हो गई है सिर्फ चाइल्ड लेबर बैंड की वजह से. अब ये चाइल्ड लेबर बैंड हुआ है तो हमारे HR के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा. जी हाँ, स्पोर्ट्स गुड्स है, कारपेट है, कारपेट इंडस्ट्री वी वर वन ऑफ द मेजर कंपटीटर्स इन द वर्ल्ड, मगर आज हमारा कारपेट इंडस्ट्री टोटल खत्म हो गया बिकॉज चाइल्ड लेबर ही नहीं है. अब चाइल्ड लेबर वॉज चीप, अब हम बड़े को हायर करते हैं एक्सपेंसिव, तो हम कम्पीट नहीं कर सकते मार्केट में. तो ये सब चीज़ें भी चैलेंज है HR डिपार्टमेंट के लिए कि किस तरह इसको हैंडल किया जाए. हमारा के लिए हैंडमेड का एक्चुअली, अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो मुझसे ले रहा था 50 रुपये घंटा, मैं ग्रोन अप बंदे को हायर करता हूँ, कहता 300 रुपये घंटा लूंगा. तो अब मैं मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता वर्ल्ड में जाकर, क्योंकि मेरा कार्पेट बहुत एक्सपेंसिव पड़ जा रहा है. दूसरी नहीं, अब दूसरी जगह की मैं हैंडमेड की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ईरान हैंडमेड कारपेट बना रहा है, टर्की भी हैंडमेड कारपेट बना रहा है, हम भी हैंडमेड कारपेट बना रहे हैं. अब हमारा कॉस्ट बहुत कम पड़ता था बच्चों की वजह से, अब बच्चों से हटा के हमने बड़ों के लेना शुरू कर दिया, कॉस्ट इतना एक्सपेंसिव हो जा रहा है कि अब हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं.